Thank you everyone. So today Nameshwar Prabhuji is not well. He is having some headache, so he has given instructions to do this seva. Kindly accommodate. Okay, everyone, the voice is clear. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayana Daiva Narottamam Saraswatim Vyasam सरस्वती व्यासं Mudiraye ततो जय Praeshu Abhadreshu नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nityam Bhagavata Sevaya नित्यं भागवत सेवया Uttama Shloke भगवते Bhavati Naishtiki भक्तिर्भक्ति Srimad Bhagavatam Canto 4 Chapter 27 Verse number 12 Yukte swam evam pramattasya युक्ते स्वामीकं प्रमत्तस्य Yukte swa evam pramattasya युक्तस्य एवं प्रमत्तस्य Kutumbasakta chetasaha Kutumbasakta chetasaha Asasad savai kalo Asasad savai kalo Yo apriha priyayoshitam Priya priyayoshitam Yukte sva evam pramattasya Kutumbasakta chetasaha Asasad savai kalo Yo apriya priyayoshitam Yukte sva evam pramattasya Kutumbasakta chetasaha Asasad savai kalo Yo apriya priyayoshitam युक्तस्व एवं प्रमत्तस्य Yukte sva evam pramattasya कुटुम्बसक्तचेतसा Kutumbasakta chetasaha असत्सवे कालो Asasad savai kalo यो अप्रिय प्रिया योषितम् Yo apriya priyayoshitam Online devotees Hare Krishna Prabhuji. युक्ते सेवं समस्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः असासादसवे कालो य अप्रियः प्रिययोषिताम् हरे कृष्ण प्रभु जी। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आशाषाढसवै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। युक्ते से प्रमत्तस्य कुटुम्बसक्तचेतसः आससाद सवे कालो प्रियं प्रिय प्रिययोषिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। युक्तेष्व एवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद सवै कालो यो प्रिययोषिताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
युक्तेष्वः एवं प्रमत्तस्य कुटुम्बस्य चेतसः आषाढश वैकोत्कातो यो प्रियः प्रिययोषिताम् थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी। युक्तेष्वेवं प्रमथस्य कुटुम्बासक्तवेतसः आससाद स वै कालो यो प्रिययोषिताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इत्येषु एवं प्रमथस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आसासाडसा वै कालो यो प्रिययोषितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। युक्ते स एवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्त चेतसः आससाद स वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। युक्तेषु एवं प्रमतस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आशदादश वै कालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बभासक्तचेतसा काक्षसाद स वै कालो यो प्रियोषिताम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आसासाडसा वै आससाद स वै कालो कालो यो यो प्रिययोषितम्। प्रिययोषिताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद स वै कालो यो प्रिययोषिताम्। हरे कृष्ण। Thank you everyone. We'll go for synonyms. Yukteshu, two beneficial activities. Evam, thus. Pramattasya, being inattentive. Kutumba, to kith and kin. Asakta, attached. Chetasaha, consciousness. Asasad, arrive. Saha, that. Why, certainly. Kalaha, time. Yaha, which. Apriyaha, not very pleasing. Priyayoshitam, for persons attached to women. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji ki Jai. Thus King Puranjana, being attached to fruitive activities karma kandiya as well as kith and kin, and being obsessed with polluted consciousness, eventually arrived at that point, not very much liked by those who are overly attached to material things. Kindly repeat. Thus King Puranjana, King Puranjana, being attached to fruitive activities, being attached to fruitive activities, karma kandiya, karma kandiya, as well as kith and kin, as well as kith and kin, and kin, and being obsessed with polluted consciousness, and being being obsessed with obsessed with polluted polluted consciousness, consciousness, eventually arrived at that point, eventually eventually arrived at that arrived arrived at at point, that that point, point, not very much liked by those not not very much much by liked by those like those those who are overly attached to material things. who are who are overly 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 attached to attached attached to to material things. material material things. things. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. In this verse, the words Priya Yoshitam and Apriyaha are very significant. The word Yoshit means woman and Priya means dear or pleasing. Death is not very much welcome for those who are too much attached to material enjoyment, which culminates in sex.
There is an instructive story in this connection. Once, when a saintly person was passing on his way, he met a prince, the son of a king, and he blessed him, saying, "My dear prince, may you live forever." The sage next met a saintly person and said to him, "You may either live or die." Eventually, the sage met a brahmachari devotee and he blessed him, saying, "My dear devotee, you may die immediately." Finally, the sage met a hunter and he blessed him, saying, "Neither live nor die." The point is that those who are very sensual and are engaged in sense gratification do not wish to die. Generally, a prince has enough money to enjoy his senses. Therefore, the great sage says that he should live forever, for as long as he lived, he could enjoy life, but after his death, he would go to hell. Since the brahmachari devotee was leading a life of severe austerities and penances in order to be promoted back to Godhead, the sage said that he should die immediately so that he need not continue to labor hard and could instead go back home, back to Godhead. A saintly person may either live or die, for during his life he is engaged in serving the Lord, and after his death he also serves the Lord. Thus, this life and the next are the same for a saintly devotee, for in both he serves the Lord. Since the hunter lives a very ghastly life due to killing animals, and since he will go to hell when he dies, he is advised to neither live nor die. King Puranjana finally arrived at the point of old age, and in old age the senses lose their strength, and although an old man desires to enjoy his senses and especially sex life, he is very miserable because his instruments of enjoyment no longer function. Such sensualists are never prepared for death. They simply want to live on and extend their life by so-called scientific advancement. Such foolish Russian scientists also claim that they are going to make man immortal through scientific advancement. Under the leadership of such crazy fellows, civilization is going on. Cruel death, however, comes and takes all of them away despite their desire to live forever. This type of mentality was exhibited by Hiranyakashipu, but when the time was ripe, the Lord personally killed him within a second. Hare Krishna. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। युक्तेष्व एवं प्रमत्तस्य
कुटुम्बासक्तचेतसः कुटुम्बासक्तचेतसः आससाद सवैकालो आसादवैकालो यो अप्रियः प्रिययोषिताम् Thus King Puranjana, being attached to fruitive activities, karma, kandiya, as well as kith and kin, and being obsessed with polluted consciousness, eventually arrived at that point, not very much liked by those who are overly attached to material things. So yesterday we saw how Narad Muni, Srila Narad Muni gave hint first time directly to King Prachina Barishat, saying, like you, King Puranjana was indulged in fruitive activities. So the story of King Puranjana, which Narad Muni is narrating to King Prachina Barishat, is an allegory. So ऐसा क्यों है कि एक गुरु अपने शिष्य को या किसी व्यक्ति को सीधे सीधे नहीं बोलता? Why Narad Muni has to go round and round to explain to King Prachina Barishat? King Prachina Barishat को समझाने के लिए नारद मुनि पुरंजना के माध्यम से समझा रहे हैं. He can directly say also, no? सीधे सीधे बोल सकते हैं. When I also started to live here in Mangalore and having worked in corporate for so long, I found it very, very strange that the temple authorities and the temple management were not giving instructions directly. जब यहाँ हम सेवा देना शुरू करें तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा कि सीधे सीधे बताते नहीं है क्या गलत है क्या सही है, इनडायरेक्टली बताते हैं, घुमा फिरा के बताते हैं. And we are not used to taking instructions indirectly. See, in corporate world, the boss gives instruction directly. Now, there's appraisal time yearly when you sit with your boss, and he will point out all the mistakes that you have done. You should have done this, you should have done this, you should have done this, you should have done this. ये करना चाहिए था आपको, ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था. Directly. And you say, I have done this, I have done this, I have done this, I have done this. मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया. तो आप बोलते हैं मैंने ये किया, वो बोलते हैं आपने ये नहीं किया. 1-on-1. पर भक्ति मार्ग में, भगवान की सेवा के मार्ग में आपको कोई ये नहीं बोलता है कि आपने ये नहीं किया, you have not done this. So when I came, the language used was, we should have done this way, let's do it this way, it could have been done better. So I would eventually think, we means who? There are hardly few devotees, and when senior authority is saying we should have done this way, initially it took me maybe a couple of months to understand we means I. नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए था. Instead of saying you did not do it this way, you should have done this way, they said we could have done it better, we could have done it this way. I said we means who? Prabhuji himself will not do, there is no other devotee who will do. Then eventually actually they are talking about me, I should have done it that way. So it also took me time to align that when you are in devotional service or trying to render devotional service, your seniors will not speak to you directly. आपको ये करना चाहिए था. हम ऐसा कर सकते थे. फिर आपको कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद लगेगा एक्चुअली वो हम का मतलब था आप, यानी मैं, मुझे ऐसा करना चाहिए था. Why is it that way? Why directly people don't speak? And the biggest, as of now, whatever I could understand, the biggest reason is people render voluntary service
People render devotional service voluntarily. They are not your salaried or paid staff. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग भक्तिमय सेवा स्वतः बिना किसी पैसे के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के करते हैं. मान लीजिए आप में से कोई, सम ऑफ यू कम, एंड आई विल स्पीक अ बिट ऑफ हिंदी ऑल्सो, वी हैव, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड. ठीक है ना प्रभु जी? तो कुछ लोग आते हैं सेवा देने के लिए. अगर आप उनको बोलेंगे आपको ऐसा करना चाहिए था, एक दिन वो बोलेगा मैं आपका नौकर हूँ क्या, आपने मुझे सैलरी दी है क्या, जितना इतना ही होता है मेरे से. पर अगर आप इनडायरेक्टली बोलेंगे, देखिए इनडायरेक्टली इज नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्टली ऑल्सो मीन्स थ्रू योर ओन आचरण. So when we came here, I saw especially our vice president, His Grace Shiva Shangan Kirtan Das Prabhu. Suppose we would do something wrong, instead of scolding, instead of doing directly, he himself would start doing. So through आचरण, self, अपना खुद करके दिखा रहे हैं. क्योंकि अगर मेरे को बोलेंगे और मेरे दिमाग में भी रजोगुण भरा पड़ा है ना, मैं बाहर दुनिया से आया हूँ, कंपनी में काम करके आया हूँ, रजोगुण, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, देन आई विल से वन डे प्रभु जी इतना ही होता है मेरे से, मैं तो पैसे नहीं ले रहा हूँ ना आपसे, आप इतने नुक्स क्यों निकालते हैं. दे नो दैट द माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस. हमारा मन अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि हम सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन ले पाएँ. आपको ऐसा करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट वर स्पीकिंग इन अ डिफरेंट टोन. दे वर डायरेक्टली सेइंग, प्रेसिडेंट वाज सेइंग डायरेक्टली टू वाइस प्रेसिडेंट, यू हैव नॉट डन दिस, यू हैव नॉट डन दिस, यू हैव नॉट डन दिस, बिकॉज दैट वाइस प्रेसिडेंट इज मैच्योर इनफ टू टेक द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली. आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू टेक द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज मेरे को बुरा लग जाएगा. एंड उनको ये पता है कि कौन सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता. जो सुन सकता है, जिसका हृदय अब इतना कोमल हो चुका है, इतना मैल से रहित हो चुका है, जो अगर आप उसको डांटेंगे भी, भले उसका कोई स्वार्थ नहीं है सेवा में, वो सुन सकता है बिना बुरा माने. पर जिसका हृदय अभी रजोगुण में है और जो ये सोचता है कि मैंने यहाँ पे सेवा प्रदान करके एहसान कर दिया है क्योंकि मैं कुछ पैसे नहीं ले रहा, वो सुन नहीं सकता है, टाइम लगता है. इसीलिए भक्ति में सेवा का जो इंस्ट्रक्शंस है, दैट इज गिवन इनडायरेक्टली. व्हेन डिसाइपल्स वुड राइट लेटर टू प्रभुपाद saying, for example, Prabhupada, this person is staying in the temple, sleeping whole day, not doing anything, just eating. Can we throw him out? Prabhupada would say, can't you tolerate? प्रभुपाद कहते थे आप सहन नहीं कर सकते. प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा अपना तो हाल देखिए, आप भी ऐसे थे कुछ दिन पहले, सोते थे, खाते थे, पीते थे, आपको भी तो मैंने शरण दी है. प्रभुपाद सीधे बोल सकते थे कि आपको भी तो मैंने शरण दी है, आप भी ऐसे ही पड़े हुए थे, ऐसे खा रहे थे, पी रहे थे. पर उन्होंने क्या कहा, आप सहन नहीं कर सकते हैं. जैसे प्रभुपाद ने उनको सहन किया, उनको दूसरों को सहन करना चाहिए. तो हमेशा these instructions are given based on the maturity of the devotee. Sometimes when we learn that our karmas are responsible for our fate, हमारे किस्मत के लिए हमारे कर्म जिम्मेदार हैं, and we see somebody on the roadside lying and struggling, छोड़ो उसके कर्म में सड़ रहा है. That is not the right way to react. Yes, ठीक है, वो अपने कर्मों के कारण दुख पा रहा है, बट जिस तरीके से हमें प्रभुपाद जी ने आश्रय दिया है, हम पे दया करी है, हमारा भी फर्ज है कि हम दया करें. प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा अरे इसके कर्म है छोड़ो इसको, सड़ने दो इसको. प्रभुपाद जी ने हमें दया करी हम पे, एंड ही एक्सेप्टेड अस इन द मूवमेंट. सिमिलरली अगर हम किसी को देखते हैं, हम सोचते हैं, क्योंकि थोड़ी फिलॉसफी व्हेन वी लर्न, वी थिंक ओह ही इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज कर्मास, लेट हिम सफर, व्हाट कैन आई डू. ही विल सफर, but what is your duty? Your duty is to show mercy, because you yourself have been the subject of receiving the mercy. आप जब खुद दया के पात्र बने हैं, आपका कर्तव्य है कि आपके अंदर की करुणा से आप दूसरों को भी दया का पात्र बनाएं. Should accept him. So Narad Muni is giving the instructions indirectly to King Prachina Barishad.
इज़ नॉट सेइंग डायरेक्टली ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो. इससे एक पुरंजना था राजा, उसने ऐसा ऐसा किया. एंड इन द लास्ट श्लोका ही सेज लाइक यू, आपकी तरह. बिकॉज सुनते 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 मे बी किरण प्राचीन परिषद नाउ इज रेडी टू हियर लाइक यू, आपकी तरह. So that is the maturity of a spiritual master, of a Siksha Guru, that based on the maturity of the person listening, he gives instruction. And now, when we see the authorities discussing, they first discuss how will the person receive this instruction. जब आपस में मंदिर के अधिकारी बात करते हैं, तो सपोज किसी भक्त को कोई सेवा देनी है, तो पहले वो ये चर्चा करते हैं अगर ये सेवा उनको दी जाएगी वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, फिर सेवा देते हैं या नहीं देते हैं. तो अगर कोई ज़्यादा उसमें है तो नहीं 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 अभी वो थोड़ा हैवी है, गुस्से में आ जाता है, अभी उसको रहने दीजिए, उसको जो कर रहा है करने दीजिए. और जो सुन सकता है हाँ उसको दे दो, उसको सेवा दे सकता है. नहीं नहीं वो तो ऑलरेडी लोडेड है, स्टिल गिव हिम समथिंग, नो प्रॉब्लम. सो बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द डिवोटी द मर्सी फ्लोज. बिकॉज इफ यू ग्रो अप fast, if you grow up in a mature way, more and more mercy will come to you through the parampara in terms of more and more service. So अगर आपको ज़्यादा सेवाएं मिल रही हैं तो आप समझ जाइए ये आप पे कृपा है, क्योंकि आपका स्वभाव अब इस तरीके से बदल गया है कि मंदिर के अधिकारी, आपके शिक्षा गुरु या आपके प्रेसिडेंट अब आपको सेवा देने में हिचकिचा नहीं रहे हैं. They are not hesitant because they know you will receive it in a very positive way. बट इफ़ योर सर्विसेज आर लिमिटेड, अगर आपको सिर्फ एक सेवा दी गई है, दो सेवा दी गई है और कोई सेवा आपको नहीं मिल रही है, समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द अथॉरिटीज़ आर हेजिटेंट इन गिविंग यू सर्विस. वो हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ज़्यादा इसको हम प्रेशर करेंगे तो ही विल ब्लास्ट, विच दे डोंट वांट. सो दे आर गिविंग यू टाइम. So when online devotees they come to the temple, sometimes they feel that the communication channel of the temple is not good. They don't tell us things directly, they leave things on us, we don't know. But you have to understand there is a reason behind it. कोई कारण है. That frustration may come like when we organize big programs. We give responsibilities of different services, welcome, transport, prashadam, and so many services, accommodation. And समटाइम्स दे वांट सम आंसर फ्रॉम अस. ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ऐसा किया हमने. तो वन सिंपल आंसर इज़ गिवन, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर लीजिए जनरली, बिकॉज दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ एप्ट फॉर दैट मोमेंट. उससे ज़्यादा या उससे कम इज़ नॉट नाइस. नाउ with Krishna's mercy and Prabhupada's mercy, we are again starting the construction of the Bhagavad Gita College. Is one of our devotees here, Mantra Prema Prabhu, you all know, could through his influential position in the company arranged for a CSR grant. See, Prabhupada said, use your influence in the service of Krishna. अपने रुतबे को आप कृष्ण के सेवा में लगाइए. तो प्रभु जी ने अपने रुतबे को भगवान की सेवा में लगा के अपनी कंपनी से हमें कुछ पैसे दिलवाए हैं. तो इस कारण जो हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रभु जी हैं, जुहू से जो आते हैं, इस ग्रेस पुंडरीक गोविंद प्रभु, ही केम सैटरडे, ही वॉज देयर फुल डे एंड वी सॉ एंड देन वी वेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स प्लेस. वो बिल्डिंग बनाएगा. Then Pundik Prabhu told a very nice thing. He's a very nice brahmachari of 40 years, very active, is above 60, but the kind of energy he displays, even youngsters will fail. So we were there in the office of the contractor and I was trying to play safe because the money is limited and the amount required for the construction is much more. Then when the contractor went out of the office, Prabhuji told me one thing: don't push risk on the side of the contractor. Take risk on your side and then leave it to Krishna. ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए. तो क्योंकि पैसे हमारे पास कम हैं जो कंपनी से मिलने हैं और ख़र्चा ज़्यादा है, तो उस
कॉन्ट्रैक्टर के दफ्तर में मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, क्योंकि मान लीजिए 1 करोड़ का खर्चा है पर हमारे पास 40 लाख रुपए ही हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस से निकला तो पुंडरीक प्रभु ने मेरे को कहा कि ये जो रिस्क है वो कॉन्ट्रैक्टर पे मत डालो, अपने ऊपर लो और उस रिस्क को लेने के बाद भगवान पे आश्रित हो जाओ। इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल नॉलेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक क्लास में बैठ के भगवान पे आश्रित हो जाओ, भगवान पे आश्रित हो जाओ बोलना आसान है, पर अब एक ऐसी परिस्थिति है, सिचुएशन वेयर यू आर टेकिंग अ डिसीजन टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, you don't have money, more money is required, and Prabhu is saying be dependent on the Lord. This is practical application of bhakti. And see the faith, कितना दृढ़ विश्वास है उनका कि आप शुरू करिए और भगवान पे आश्रित हो जाइए, जितना रिस्क है अपने ऊपर ले लीजिए और भगवान पे आश्रित हो जाइए। यानी कितना दृढ़ विश्वास है कि हाँ भले ही हाथ में 30 पैसे हैं, 1 रुपये का काम भगवान करवा देंगे हमारा। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति, and this comes from Shraddha, Nishtha. Out of his 40 years of brahmacharya, he has developed this unflinching faith of Krishna. Take the risk. So it's not a theoretical application, it's a practical application. And then later the same line was repeated to me by Namishta Prabhu. Pundik Prabhu ने बोला है रिस्क अपने ऊपर लो और भगवान पे छोड़ दो। One instruction and it can change your life, है ना? पूरा लाइफ बदल सकता है एक लाइन कि देखिए प्रभु जी को कितना विश्वास है और उनके विश्वास पे आप विश्वास करते हैं, अरे है ना, देन यू से ओके प्रभु जी जैसा आप बोलेंगे विल डू लाइक दैट। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो नारद मुनि इज सेइंग टू किंग प्राचीन बरिषत दैट यू आर लाइक पुरंजना। नाउ इन दिस वर्स किंग पुरंजना इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ग्रोइंग ओल्ड। वो बूढ़े हो गए हैं एंड स्टिल ही इज सो मच अटैच्ड टू फ्रूटिव एक्टिविटीज, सो मच अटैच्ड दैट ही डजंट लाइक हिज बिकमिंग ओल्ड। इतने ज़्यादा आसक्त हैं भौतिक चीज़ों से कि अब उनको अपना बुढ़ापा अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रभुपाद हैज़ यूज्ड अ वेरी नाइस लाइन. I will read that line and give you a real life example. Prabhupada is saying, when you become old, your instruments of sense gratification do not work. आप जब बूढ़े हो जाते हैं तो आपकी इंद्रियां जिनसे आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो काम करना ही बंद कर देती हैं. तो आपकी हालत कैसी हो जाती है? एक तालाब के बाहर मछली तड़प रही है, अरे मुझे इंद्र तृप्ति करनी है पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके जो इंद्रियां वो काम करना बंद कर गई. आप छूना चाहते हैं एक लड़की को पर हाथ कांप रहे हैं तो आप तड़प रहे हैं, मैं छू नहीं पा रहा हूँ, मैं एंजॉय नहीं कर रहा. सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. So when I was working abroad, so it was in Nairobi, Kenya, and there are a lot of Gujarati families in Nairobi, and I was dealing with one person. He was our travel agent. He told me that one old person, very old person, maybe 85-90 years of age, he was found dead in a hotel. In a hotel room, he was found dead. And the persons who found out of shame, could not even tell to his wife. मतलब एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति 80-85 साल का एक होटल के कमरे में इंडियन ओरिजिन का केनिया में नायरोबी मरा हुआ पाया गया, और जिन्होंने पता किया कि वो मर गया है वो शर्म के मारे उसकी वाइफ को बता भी नहीं पा रहे थे कि आपका पति एक होटल के कमरे में मर गया है. मतलब दिस ओल्ड मैन वॉज एंगेजिंग और इंडल्जिंग इन इलीगल सेक्स विथ प्रोस्टिट्यूट्स इन होटल रूम्स एट द एज ऑफ 85. एंड वाइल इंडल्जिंग इन दोज एक्टिविटीज ही डाइड. The prostitute ran away and the body was still lying on the bed,
The wife was saying, "कहाँ गए मेरा husband? Where is my husband? Where is my husband?" Then they found out he is dead in the hotel. They could not even tell the wife that your husband was found in a hotel. Why he went to the hotel room? अगले एक वैश्या के साथ अभी भी उनके संबंध हैं, और वो जब मर गए तो वैश्या तो भाग गई, और उनके अभी शरीर पड़ा हुआ है होटल में, उनकी वाइफ कह रही मेरे पति नहीं मिल रहे हैं। तो जो दोस्त ने परिवार ने खोजा वो बता भी नहीं पाए पत्नी को कि आपके पति को हम होटल के कमरे में हमें मिले। ये 80-85 साल के बुजुर्ग की कहानी है, और ये असली कहानी है, असली बात है। तो हम कहते हैं ना कि आदमी वृद्ध हो जाएंगे, when they become old they will improve. No. Exactly like Puranjana, where he is so much attached to fruitive activities that he doesn't like his position of becoming old. अब उसको बुजुर्ग, अपना बूढ़ा होना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी इंद्रियां काम करना बंद कर दी। Can you imagine such a situation? That is why, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को अपनी बेटी के साथ भी कमरे में अकेला नहीं रहना चाहिए। आप देखिए, when a person who is 85 years of age is found dead while indulging in prostitution with a prostitute in a hotel room, how will he look at his own granddaughter? वो अपनी पोती को किस आंख से देखेगा? जिसको अभी भी इतनी काम वासना है 85 साल की उम्र में, वो तो अपने बेटी, अपने पोती को भी इसी नज़र से देखेगा ना। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। Shastra says that there are two ways. One is avoid sense gratification, another is overindulgence in sense gratification. यानी एक तो है कि आप इंद्र तृप्ति को बंद कर दें, दूसरा है इतनी ज़्यादा इंद्र तृप्ति करें कि आप उस भोग से अब और नहीं, अब नहीं होता है। प्रवृत्ति या निवृत्ति, दो मार्ग हैं। हमारा मार्ग कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग है? करें इंद्र तृप्ति, करें, बंद कर दें। जो हिप्पी थे वो दूसरे मार्ग में आ गए थे शायद, उन्होंने इतनी ज़्यादा इंद्र तृप्ति कर ली थी, so much of sense gratification that they were tired of sense gratification now. They don't want to do, they were looking for alternative ways of life. And they were somehow blessed that they found Srila Prabhupada. So Prabhupada here is saying that old age is something which is not liked by many persons because their senses stop working. Priya Yoshitam. Priya means dear or pleasing, Yoshitam means woman. And why death and old age is not welcoming? Because they cannot engage in sexual activities. And then a very nice story Prabhupada is explaining in the purport, saying there was a saintly person, एक साधु थे जिन्होंने एक राजकुमार को एक आशीर्वाद दिया। एक राजकुमार गुजर रहा था। My dear prince, you may live forever. हे राजकुमार, तुम हमेशा जीवित रहो। फिर उनके बगल से एक साधु गुजर रहा था, उनको क्या आशीर्वाद दिया कि आप या तो जिए या तो मरे, यू मे लिव और यू मे डाई। एक ब्रह्मचारी गुजर रहा था, ब्रह्मचारी को क्या आशीर्वाद दिया? आप तुरंत मर जाएं। और एक हंटर, एक शिकारी था, उनको क्या आशीर्वाद दिया? नीदर लिव नॉट डाई, ना तो आप जिए ना तो मरें। तो इन आशीर्वाद का मतलब क्या है? तो जो राजकुमार था, राजा का पुत्र था, ही गॉट अ बेनेडिक्शन दैट यू मे लिव फॉर एवर, आप हमेशा जिए। क्यों? सो दैट ही कैन एंजॉय मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। आप अपनी इंद्र तृप्ति जितना करना चाहते हैं करें। तो वो ही चाहता था ना कि जिससे वो जितना जिए और जीते 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 इंद्र तृप्ति करे और बाद में कहाँ जाए? नरक में चला जाए। ब्रह्मचारी को उन्होंने कहा तुरंत मर जाओ। क्यों कहा ऐसा? क्यों जाएंगे भगवत धाम? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। तो अब ब्रह्मचारी बहुत तपस्या में लगे हैं और उन्होंने कहा कि अब आप और तपस्या की दरकार नहीं है, अब आप मर जाएं और भगवान के धाम जा सकते हैं। और जो साधु गुजर रहे थे उनको ऐसा क्यों कहा कि आप चाहे तो मरे चाहे तो जिए? ये क्यों कहा उन्होंने? बताइए। ब्रह्मचारी को कहा मर जाएं, पर एक साधु को कहा या तो आप जिए या तो मरे, आपकी जैसी इच्छा। क्योंकि एक साधु भगवान की सेवा में लगा है, मर के भी जी के भी।
तो जब वो जीवित है तो भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और मरने के बाद भी भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करेगा। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो भौतिक शरीर में है कि नहीं है, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे। इसीलिए भगवान के जो सच्चे शुद्ध भक्त हैं वो क्या कहते हैं, ना तो हमें आपके धाम की इच्छा है, ना हमें मोक्ष की इच्छा है, हमें तो सिर्फ आपके सेवा की इच्छा है। तो जब राम जी अपने लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम जा रहे थे तो हनुमान जी को उन्होंने क्या कहा, आप यहीं रह जाइए। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा, अरे अरे आप मुझे यहाँ भूलोक पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, सेवा है। और आज भी हनुमान जी यहाँ पे हैं। तो भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त कहीं भी हों, दे एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड वेदर इन मटेरियल बॉडी और नॉट इन द मटेरियल बॉडी। और उन्होंने शिकारी को क्या कहा कि ना तो तुम जियो ना तो मरो। इसका क्या अर्थ है? दिस मीन्स that while living also actually he is dead because he is killing animals and living a very ghastly life. एक नरकीय जीवन बिता रहा है। तो जिए रहा है तो भी नर्क है, मरने के बाद भी नर्क है। तो चाहे जियो चाहे मरो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जीवन वैसा ही है। तो किंग पुरंजना जो है अब वो अपने बुढ़ापे में आ गया है और उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, क्योंकि because his instruments of enjoyment are no longer functioning. जो जिस चीज से, जिस इंद्रियों से वो अपने इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। दे नेवर प्रिपेयर फॉर डेथ, है ना। जैसे वो बूढ़ा आदमी केनिया में नैरोबी में जो मर गया 85 साल की उम्र में एक वैश्या के साथ कमरे में, उसने अपने आप को कभी मरने के लिए तैयार ही नहीं किया। अब सोचिए जब उसके पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके पोता पोती को पता चलेगा कि दादाजी कमरे में मरे पाए, कितनी शर्म की बात है। नज़र भी नहीं उठा के देख सकते ना, किसी को बता भी नहीं सकते क्या। क्यों? क्योंकि आप अपने इंद्र तृप्ति में इतने व्यस्त थे कि अपने साथ साथ आपने अपने परिवार को भी डुबो दिया, शर्म के कारण डुबो। क्योंकि आपके इंद्र तृप्ति पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। खाली they want to live on, live on, live on, live on and enjoy. Michael Jackson, he wanted to live how many years? कितने साल जीना चाहते थे? 200 साल? 150 साल, 150 साल। माता जी को पता है। तो 150 साल जीना चाहते थे, और कितने साल की उम्र में मर गए पता है आपको? 50 साल भी पूरे नहीं हुए। 50 भी पूरे नहीं हुए। तो यानी उन्होंने क्या किया था, अपने चारों ओर he had a full team of doctors and they would travel with him for his concerts, जिससे कि उनका खाना पीना, रहना, एक्सरसाइज, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन, वो जवान रह सके। कुछ भी नहीं करते तो 70-80 साल जी सकते थे। इतना कुछ करके भी, मेरे को जहाँ तक याद है 40-42 की उम्र में मर गए। माता जी कह रहे हैं 50, चलिए 85 मान लीजिए। इतना कुछ करके भी जल्दी परफेक्ट 50 भी पूरे नहीं थे, 49 चल रहा था प्रभु जी। 50 चल रहा था, चलिए 39 साल 6 महीने, और वो मर गए। So people want to live on forever, ever, but they don't understand that the plan of Krishna is something different. So this is nothing but foolishness. Prabhupada is saying, foolish scientists claim that we can make you immortal. हम आपको हमेशा जिंदा रख सकते हैं, पर आप इस चक्कर में क्या है, जितनी आपकी नॉर्मल अवधि है, that also you are not able to live. Cruel death comes and takes away everything. और काल कौन है? काल कृष्ण स्वयं है। काल सब कुछ हर लेता है। अभी इन दिस एज ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट, पीपल आर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, सो मच ऑफ वेल्थ दे आर एक्यूमुलेटिंग। इफ यू सी द पर्पस, दे मे एंड अप बाइंग few houses and few cars, nice clothes, nice watches, nice shoes, you know, holiday trips and all. But ultimately, when they don't know where to spend their money, they end in two things. What? Intoxication and illicit sex. Extra money has to end in two things. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो अंत में आप दो चीज़ करेंगे। क्या? नशा और अवैध संबंध। इसमें ही आप अपने पैसे खर्च करेंगे। क्योंकि अब आपने बहुत सारे घर खरीद लिए हैं, गाड़ी है आपके पास, अच्छे कपड़े आप पहनते हैं, घड़ियाँ हैं आपके पास, आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है इस पैसे का मैं क्या करूँ, तो आप एग्जॉटिक ड्रग्स खरीदेंगे,
है ना, जिसका 1 ग्राम 1 लाख रुपए में मिलेगा, और आप क्या करेंगे, इलिसिट रिलेशनशिप, देन यू विल टॉक अबाउट कौन से कंट्री के गर्ल को जाके मैं अपना इलिसिट रिलेशनशिप बना सकता हूँ, जहाँ ज़्यादा पैसा, यू विल वांट दैट, यू विल वांट दैट, यू विल वांट दैट। सो एक्स्ट्रा मनी। कलयुग जब हम पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज ने कली पुरुष को हरा दिया, तो कली पुरुष को जो आश्रय मिला उसमें से एक आश्रय उसको कहाँ मिला, सोने में, गोल्ड, मनी। तो जिसके पास ज़्यादा धन है और उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उस धन का उपयोग वो अपने इंद्र तृप्ति में करता है और नरक में जाता है। तो yesterday evening Bhagavatam class we were discussing that the life of a brahmachari automatically becomes very simple. कैसे? He stops accumulating wealth because he thinks if I have so much of wealth and if I die, what will happen to the wealth? Because I don't have kids. एक गृहस्थ जो होता है वो पैसे कमाता है, बैंक में इकट्ठे करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, उसको लगता है मैं मर भी गया तो ये मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। पर जो शादी नहीं करता, ब्रह्मचारी है, वो ये सोचता है आज मेरे पास 4 करोड़ बैंक में हैं, कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो उस 4 करोड़ को तुरंत खर्च करने लगता है भगवान की सेवा में, क्योंकि उसको पता है ये पैसे को करना क्या है, मेरा तो कोई परिवार है नहीं। तो ओनली वन डिसीजन ऑफ योर लाइफ कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। खाली अगर आप ये निश्चित करते हैं आप ब्रह्मचारी रहेंगे, तो आप तुरंत सकाम कर्म बंद कर देते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज़, क्योंकि अब आपको पता है इस पैसे का मैं करूँगा क्या, खाऊंगा क्या, खाएंगे क्या पैसे, खा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, नहीं खा सकते हैं ना, तो करेंगे क्या? इमीडिएटली यू स्टॉप योर फ्रूटिव एक्टिविटीज बिकॉज you know what will you do out of that money. You have nothing to do out of that money because you have no one. Then we were discussing examples. Then somebody can say even politicians, some politicians are not married, so they are also very nice, they are not doing fruitive activities. It's not like that because they are accumulating wealth for their relatives, है ना। अब जहाँ से आए हैं, जिस स्टेट से, उसका जो मुख्यमंत्री है वो शादी नहीं करी है ना, पर वो पैसा किस लिए इकट्ठा कर रही है? अपना भतीजा के लिए। पर ब्रह्मचारी को भतीजा और चाचा ताऊ कुछ नहीं होता, वो तो अपने माँ बाप को छोड़ के आया, वो किसका चिंता कर रहा है, तो वो पैसे इकट्ठे ही नहीं करता। बट स्टिल दैट डज नॉट मीन दैट अ ब्रह्मचारी में नॉट डू फ्रूटिव एक्टिविटीज। एक प्रश्न है आप सबसे, आप बता सकते हैं, इफ अ ब्रह्मचारी हु इज नॉट मैरिड is not accumulating wealth, which means he is not doing fruitive activities, still there are chances he can do fruitive activities. What sort of fruitive activities? He can do it for respect, मान सम्मान। तो मान सम्मान की इच्छा रह जाती है कि मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ लेक्चर दूँ, वहाँ पे लोग खड़े होकर बोले वाह प्रभु जी क्या क्लास लिया है आपने, दंडवत प्रणाम करेंगे हम आपको, माला पहनाएंगे, राजभोग खिलाएंगे, वो मान सम्मान। देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग आई डिजर्व दिस, मैं इसके लायक हूँ। इट इज सेड दैट द क्रेविंग फॉर रेस्पेक्ट इज सटल सेक्स फॉर अ ब्रह्मचारी। अगर उसको मान सम्मान की इच्छा है तो वो उसके लिए सूक्ष्म मैथुन की तरह है। वो खुद तो सेक्स नहीं कर रहा है, पर एक सूक्ष्म तरीके से कर रहा है, क्योंकि उसको मान सम्मान की इच्छा है कि लोग मेरा मान सम्मान करें, मेरी रिस्पेक्ट करें। तो फिर उसके लिए वो फ्रूटिव एक्टिव शुरू कर सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, सिंस ही इज नॉट accumulating wealth, he is not accumulating money, he is freed automatically from fruitive activities. So some simple decisions of your life can change the way you lead your life. So overall, what is the discussion? The today's discussion is भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रियत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते. If you are too much indulged in sensual pleasures, then you cannot focus on serving the Lord, because you are focused on serving yourself. With that note, we'll end the discussion. If anybody wants to add anything, has any question, please go ahead. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Jyoti Mata ji, आपको कुछ कहना है? You want to say anything? Please unmute. Hare Krishna. I have plenty of questions. I have 5. They're very tiny. Could I ask all 5 today?
5 questions. You start with one, maybe all your 5 will get answered. Start, Mataji. Okay. First question: when I see someone suffering in the, like, I'm crossing the street anywhere and I see someone suffering, like maybe a person without limbs, a person in a very difficult scenario, I tremble with fear. अंदर से बहुत घबराहट होती है. And a question arises in me: how that person, like Prabhupada quotes, no, that we should focus on saving the drowning man. It's more important to save the man rather than the cloth. Because if I help the person some temporarily tiny act of kindness, but if I'm able to connect that soul to that great good God, then I am limited, but the Lord is unlimited. Lord will infinite help. So if I'm able to show tiny acts of kindness, I think Very difficult to understand what you're saying. समझ नहीं आ रहा है ना? Maybe you have to speak. आपको समझ में आया मतलब? Just speak with the mic closer to your mouth so that we are trying hard to hear you but not able to hear you properly. Am I audible now? Maybe somebody online can hear and tell me what Mataji is trying to say. आवाज आ रही है अब? मैं बाहर जाती हूँ. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी कोशिश करिए माताजी. हाँ, जब मैं जाती हूँ बाहर कहीं और मैं किसी को भी तकलीफजनक स्थिति में देखती हूँ तो अंदर से मेरे को घबराहट होती है. लाइक इफ आई सी समवन विदाउट लिम्स, किसी का कोई हाथ पैर नहीं है, किसी का कोई भी तकलीफजनक स्थिति में है, मुझे अंदर से घबराहट और मुझसे देखा नहीं, मुझे लगता है सब निकल जाए एंड लॉर्ड वेल्स इन ऑल. तो अब प्रभुपाद जी कोट करते हैं एक उदाहरण ड्राउनिंग मैन का कि एक आदमी डूब रहा है और हमें उसके वस्त्र को बचाने पे ध्यान नहीं रखना, हमें उस बंदे को बचाना है. सो दैट इज सेविंग द सोल. तो मैं ऐसा दैट आई एम एबल टू कनेक्ट देम टू द कि मैं लिमिटेड हूँ और भगवान अनलिमिटेड है. मैं इतनी मदद नहीं कर पाऊंगी जितना भगवान कर पाएगा. तो आई वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन. आपको समझ आया? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि आई कैन जस्ट करेक्ट मी दैट व्हेन यू गो आउट एंड यू फाइंड somebody on the street who doesn't have a hand, doesn't have a leg, you feel terrified. So you don't feel mercy, you feel terrified. आपको डर लग जाता है, अंदर से घबराहट हो जाती है. Something you are saying, correct माता जी? So correct. So I don't know if this is the question. Supriti Mata ji, can you explain me what she is wanting to ask? Maybe her network is not nice. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, Mataji is telling like when she goes out, when she sees a person without a limb or a thing, she trembles, fearing that she can't help, but only the Lord can help. Like Prabhupada says, like we should focus on the soul, that is not on the drowning body instead of the drowning living entity. So in what way we could imply? Okay, understood. So I'll explain. Mataji's question is that she sees somebody suffering because somebody doesn't have a hand or leg, and she feels terrified, and then she thinks Prabhupada has said save a drowning man, not the cloth. So focus on the soul, not the body. So what she should do? See, first of all, feeling terrified means that there is so much of fear in you that you may suffer the same fate because you have done so much of sins in the past. So there can be two feelings. When you see somebody suffering, you can either feel merciful or you can feel fearful. You feel fearful because you think something can happen to me. Because there is so much inside that, oh, मैंने इतने पाप किए, I've done so much of sins, I can also suffer the same fate. Number one. Number two, what you can do. See, it is absolutely right that you have to focus on the soul and not on the body. So you give him solution, soul oriented. So if that person is there and you are feeling that you should help him, then give Harinam to him, give Prabhupada books to him if he can read. If he cannot read, at least ask him to chant the name of the Lord, and that is the food for the soul. Because when the soul is in its right position, automatically bodily pains doesn't matter. Bodily pains will not matter. But at the same time, if somebody is bleeding, some pus is oozing out, you cannot ignore that also. Because yantra rudani maya, this body is helping you in serving the Lord. So you have to pay attention to his bodily immediate needs also.
He's hungry, you have to feed him. He has injuries, open injuries, you have to get some dressing done for him. He is naked, you have to get clothes for him. But at the same time, focus on something which will keep him sustained, which is Harinam. Or you have to connect him to the Lord. Yeah? Okay, Mataji? Mataji, your network, sorry, I cannot understand at all. Maybe we will take the next question by the time you go to a proper place. Hare Krishna, Vijayalakshmi Prabhuji. Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Whether Yes, ma'am. chanting can be done in mind. In mind. Uh, See, we Without are not. noise. No. First of all, it's not a noise. Without this, sorry. No problem. Sorry. Sometimes, yeah. See, when Haridas Thakur used to do how many rounds, Prabhuji? 192. 192. Out of that, some rounds he used to do in the mind. We are not Haridas Thakur. Our instruction to us is chant and hear 16 rounds. That is the instruction. Because we are not qualified to chant in the mind. Okay? So answer is no, you cannot chant in the mind. 16 you chant and hear properly. Rest will be taken care. Okay? Thank you very much, Prabhuji. Yes, ma'am. Hare Krishna. हरे कृष्णा अब मेरी आवाज आ रही है बोलिए माता जी हम मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं कुछ भी हो सकता है कुड बी एनीथिंग हॉरिबल वर्स्ट कुछ भी तो हमें ये सिखाया है वैष्णव सदाचार में कि हमें हर किसी को हर परिस्थिति को भगवान की स्पेशल मर्सी समझनी है क्योंकि एक भक्त होता है वो कहता है कि जो मैं भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ वो मेरे कर्मों का फल है हो सकता है मुझे 100% पनिशमेंट मिलनी थी पर भगवान ने प्यार कर कर मेरी पनिशमेंट 3% कर दी तो अब ये हमने वैष्णव सदाचार में तो मेरा सवाल है कि अगर जो सोल है क्योंकि हम सब सोल्स हैं वी आर नॉट द बॉडी और अगर उसको फीमेल गारमेंट में डाल दिया गया और उसका जो कैरेक्टर है कहते हैं कैरेक्टर कम्स फर्स्ट रेस्ट एवरीथिंग कम्स आफ्टरवर्ड उसके कैरेक्टर पे सिनेरियो ये है कि उसके कैरेक्टर को अक्यूज किया जा रहा है फॉल्सली तो क्या उस सोल को उसको भी भगवान की मर्सी समझ के धन्यवाद प्रभु ये तेरा मेरे लिए प्रेम है मैं तेरी बेटी हूँ तू जिस भी रंग में रख मैं तेरा धन्यवाद करूंगी उस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए rather than crying and saying I me क्योंकि वो प्रभु है जिस मर्जी रंग में रखे अगर मैं उसे प्यार करती हूँ तो मैं धन्यवाद करूंगी जी ओके see Mataji the question okay understood Mataji understood the question Mataji is asking is we are all souls we are not body and if somebody is accusing you आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो क्या फिर भी आपको ये कहना चाहिए हाँ भगवान आपका आशीर्वाद है धन्यवाद देखिए थिंग इज व्हेन परीक्षित महाराज saw one cow and one bull being beaten by somebody he immediately rushed and he asked the bull who broke your leg there was one man standing and beating and broke the leg of the bull did not answer did not say this person no he said king you can see for yourself who has done this immediately king Parikshit said you are none other than dharma personified आप साक्षात धर्म हैं बुल के रूप में क्योंकि कोई व्यक्ति जो कि कली पुरुष था आपके मार के पैर तोड़ दिया है पर आप उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं आप साक्षात धर्म हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई भी परिस्थिति अगर आपके साथ हो रही है दूसरे पे उंगली उठाना हमारे शास्त्र में मना करते हैं शास्त्र ये नहीं कहते हैं उसका नाम लीजिए उसका नाम लीजिए उसका नाम लीजिए क्योंकि कोई भी परिस्थिति अगर आपके जीवन में पैदा हुई है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कोई भी नहीं चाहे वो एक्विजिशन हो चाहे वो फिज़िकल टॉर्चर हो चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो देखिए कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है वो किस तरीके से आती है आपके पति या पत्नी आपके माँ बाप आपके बच्चे आपके पड़ोसी आप जिस सिटी में रहते हैं जो आपका बॉस है ना जिस ये सारी चीज़ें से ही तो आपको सुख और दुख मिलता है
आपके परिवार वाले आपको सुख दुख देते हैं, आपके पड़ोसी आपको सुख दुख देते हैं, आपका बॉस आपको सुख दुख देता है, आपके बच्चे आपको सुख दुख देते हैं, आप जो खा रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, किसी बस्ती में हैं, किसी पॉश कॉलोनी में है, किसी बंगले में है, किसी झोपड़ में है, गंदा पानी पी रहे हैं, अच्छा पानी, ये सब चीज़ तो सुख दुख है। तो जिस परिस्थिति में आप हैं वो आपके कर्मों के कारण है, तो इसमें आपको दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई मार रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? देखिए, प्रभु जी बार बार कहते हैं अंदर से आपको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि ये मेरे कर्म हैं जो मैं भोग रहा हूँ, पर ऊपर से आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। मान लीजिए किसी को डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आपको जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरी पत्नी मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, पर उसको अपने जीवन का जुनून नहीं बना लेना। यू डोंट हैव टू मेक इट द ओनली थिंग इन योर लाइफ। उसको सजा दिलवा के ही रहूँगी मैं। आपने अपना कार्य किया, आप इंटरमिटेंट फॉलोअप्स कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, पर ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब यही अपने जीवन का मकसद बना लिया है, उसको तो जेल पहुंचा के रहूँगी मैं। ये गलत है। तो ऊपरी स्तर पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, पर अंदर ही अंदर आपको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मेरे कर्म ही जिम्मेदार है। बिकॉज माई कर्मास आर सो बैड from my previous births that I have to suffer, because not everybody is going through the same fate. Everybody is getting married, but not everybody is going through the same fate. My husband is like this or my mother-in-law is like this because I am special. I have done something bad with them in my past lives. So you have to accept. At the same time, on an exterior level, you have to take some actions based on the laws and the country, laws of the country, based on the situation you are in. But not get depressed completely and not make it the only day of your life. Yeah. Okay, I think we'll end with that. Thank you, Mataji. We'll answer your remaining questions maybe next session. We'll take last maybe Dipeshwari Prema Devidasi Mataji. You want to say something? हरे कृष्ण प्रभु जी। Correct, Mataji. प्रभु जी, आपने बताया प्रवृत्ति मार्ग के बारे में। तो प्रवृत्ति में तो ऐसा होता है ना कि हम अपनी इंद्रियों को जितना विषय में इन्वॉल्व करेंगे उतनी वो ज्यादा डिमांड करेगी। तो वो कैसे वहाँ से वो निग्रह हुआ? माता जी क्या बोल रहे, क्या बताया आपने से बताया ना कि प्रवृत्ति मार्ग है, उसमें हम इंद्रियों को विषय सुख में इन्वॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसमें क्या है, माता जी कह रहे हैं कि एक मार्ग है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे, तो उसमें कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? उसमें क्या होता है माता जी, उस मार्ग में आप इतनी ज़्यादा इंद्र तृप्ति कर लेते हैं ना कि अब आप थक जाते हैं। जैसे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो हिप्पी जो थे, जो सड़क पे पड़े हुए थे, वो कोई झोपड़पट्टी से नहीं थे, वो अमेरिका के करोड़पति अरबपति परिवारों से थे, जिन्होंने इंद्र तृप्ति कर कर के अब वो थक गए थे। अब वो कह रहे थे कि ये सेम चीज़ हमें नहीं चाहिए, कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जीवन जीने का। ये लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, अच्छा खाना पीना, ये अब नहीं, अब हम इससे थक चुके हैं, हम इससे बोर हो चुके हैं, अब हमें कुछ अलग तरीका चाहिए जीने का, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ। और क्योंकि उनको अध्यात्म का मार्ग नहीं पता था तो उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया, क्योंकि ड्रग्स लेने से वो हाई कहते हैं ना कि हाई हो गए, उनको लगता था हाँ यही अलग तरीका है जीने का। वो सड़क पे पड़े रहते थे, खुलेआम संबंध बनाते थे, गंदे पड़े रहते थे, और इसीलिए उन्होंने प्रभुपाद जी का अध्यात्म का मार्ग जल्दी चुना। जब शुरू में प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को का चैंटिंग करके आप इन आदतों को छोड़ सकते हैं, उन्होंने क्या एडवर्टाइजमेंट किया, चैंट हरे कृष्णा एंड बिकम हाई, बी हाई। हाई मतलब जब आप ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं ना, तो आपको लगता है, जैसे आप हाई को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, तो आप उस तरीके से महसूस करेंगे। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके कहते थे कि जप करिए और हाई फील करिए, हाई महसूस करिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप इस तरीके से प्रचार कर सकते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हाई। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली भगवान का नाम उनके जीवन में आया, तो वो थक चुके थे इंद्र तृप्ति करते करते, तो उन्होंने अध्यात्म को स्वीकार किया। और वो मार्ग हमें रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप कब थकेंगे पता नहीं है। देखिए, जो मैंने उदाहरण दिया, वो 85 साल का बूढ़ा कमरे में मरा पाया गया, वो भी थका ही नहीं, 85 साल की उम्र में भी नहीं थका। तो कब हम थकेंगे पता नहीं है, इसलिए सुन के सीख लेना चाहिए। जो सुन के नहीं सीखता है वो गिर के सीखता है, चोट खा के सीखता है। कब चोट खाएंगे, कब गिरेंगे, इससे अच्छा सुन के सीख लेते हैं कि हमें इंद्र तृप्ति छोड़ देनी चाहिए। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु।
हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, इट्स ऑलरेडी ओवर 9, विल प्रोसीड फॉर द डे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण।